जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। सत श्री अकाल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। कमल निशान जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਹ ਪੁरुष और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो कि भारतीय राजनीति के ऐसे नक्षत्र जिन्होंने जिथे जिथे भी पार्टी ने उत्तरदायित्व दिता उन्होंने नवे इतिहास की सर्जना की। राजनीति का इतिहास इस चीज का गवाह आ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के ऐतिहासिक परिवर्तन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर इन्होंने एक ऐतिहासिक कृषि बीमा योजना देश के लागू की और सब तो जे स्वर्णिम इतिहासकार रहा इन्हां दे राष्ट्रीय अध्यक्षता के कार्यकाल दे विच भारतीय जनता पार्टी ने इस देश दे विच सरकार बना के नवा इतिहास रचना की। ऐसे लोह पुरुष का मैं मोगा नगर दे विच आउण ते स्वागत करदा। पार्टी वालों मैं प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री मोहन लाल सेठी जी, स्टार कंपेनर सरदार परमदीप सिंह गिल जी, निधड़क बराड़ जी नूं बेनती करदा कोई शाल दे के अज दे मुख मेहमान का स्वागत करन। मैं बेनती करदा मोगे ते उम्मीदवार श्री हरजोत कमल जी नूं कि अज दे मुख मेहमान माननीय रक्षा मंत्री जी नूं श्री साहब ते सौल दे के उन्हां दा स्वागत करन। श्री हरजोत कमल जी जिंदाबाद। 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 इस दे नाल शॉल भेंट करन लई मैं बेनती करदा धर्मकोट तो उम्मीदवार श्री रवि गरेवाल जी, बाघा पुराना तो उम्मीदवार जगतार सिंह राजेवाला जी नूं कि वो आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करन। इस दे नाल ही प्रदेश कार्यकारिणी के मैंबर श्री त्रिलोचन सिंह गिल, राकेश भल्ला जी, भजन सितारा जी, विजय शर्मा जी बेनती करदा कि अज दे मुख्य मेहमान का स्वागत कर। आजो प्लीज बस 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 जिंदाबाद। हुण मैं बेनती करदा कि अज दी इस चुनाव मुहिम दे विच अपने विचार रखने लई मोगा विधान सभा हल्के तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री हरजोत कमल जी तुहाडे रूबरू होण। मेरे नाल नारे का जवाब जोरदार ढंग नाल देना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल निशान जिंदाबाद। जिंदाबाद। श्री हरजोत कमल जी ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ जी मंच के ऊपर बैठे
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੂੰਗੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਹੋਰ ਇੰਜਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਠੋਕਮਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰ, ਪੀਜੀਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਤੇ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਰ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਆ ਸਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜਿਮ ਬਣਾਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਮ ਬਣਾਏ ਆ। ਸਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕੱਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੂਮਨਸ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੀ ਟੂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, 100 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ एम्प्लॉयमेंट दी जाए सर, तां जाके ये गल बननी है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विनय जी शर्मा और यहाँ के प्रत्याशी उम्मीदवार श्री हरजोत जी कमल, जब कमल लगा है और कमल वाले ही हैं तब तो इनको जीतने से कोई ये रोक नहीं सकता। जन्म से ही ये कमल है। श्री रविंदर जी केजरीवाल ये हमारे पंजाब लोक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और हमारे श्री मुक्तिहार सिंह जी ये संयुक्त अकाली दल के कैंडिडेट हैं और हमारे जगतार सिंह जी ये हमारे संयुक्त अकाली दल के ये भी हमारे कैंडिडेट हैं। मैंने भाइयों आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे पंजाब लोक कांग्रेस हो, चाहे संयुक्त अकाली दल हो, कोई अंतर नहीं है। हम लोग दिल से दिल मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही राजनीतिक पार्टियां हमारी अलग अलग हो सकती। हिंदी आप लोग समझ लेते हैं कि नहीं समझते? हाँ जी। समझ पा रहे हैं सब लोग? मेरा भाइयों आज सबसे पहले मैं अमृतसर आया और अमृतसर आने के बाद मैंने फैसला किया कि यदि अमृतसर में किसी सभा को संबोधित करने के लिए आया हूं तो सबसे पहले मैं दो प्रमुख मंदिर हैं, दुर्गाना मंदिर और हरविंदर साहब का स्वर्ण मंदिर। मैंने कहा पहले दोनों स्थानों पर जाकर माथा टेकने के बाद ही मैं किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए जाऊंगा। पंजाब का जहां तक सवाल है, यह गुरु नानक देव जी की पावन धरती है और आप सभी जानते हैं गुरु नानक देव जी ने सत्य, संतोष, दया, विनम्रता और प्यार को आधार बनाकर ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की थी जो जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर एकजुट हो और सबसे बनाई और सबसे भलाई में विश्वास करने वाला समाज हो। ऐसे समाज की हमारे गुरु नानक देव जी ने कल्पना की थी। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? आपने सुना होगा कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने क्या कह दिया, कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी, यहां उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया लोगों को हम आने नहीं देंगे। बहनों भाइयों, मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को नहीं आने देगा। हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं सबसे बनाई और सबसे भलाई, और ये भारत को ही टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी हमारे पंजाबी भाई को यदि छू देगा, टच कर देगा, बहनों भाइयों, उसको पीड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। सारा देश एक है। हमारे देश के संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि सारी दुनिया के में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को कहीं से गया है तो भारत की धरती से गया है बहनों भाइयों, किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। और यहां पर चन्नी साहब डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, और प्रियंका जी वहां मौजूद थी। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, पॉलिटिक्स यदि की जाती है तो समाज बनाने के लिए की जाती है, देश बनाने के लिए की जाती है। क्या तमाशा कर लिया इन लोगों ने? कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को?
पंजाब की धरती का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो कहता हूं यहां का सिख समाज ये भारत की अंतरात्मा है। राष्ट्र निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में जितना बड़ा आपका योगदान है मेरे बहनों भाइयों, जो सिख समाज का इतिहास जानते हैं वह किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते। मैं कैसे भूलूंगा, महाराजा रणजीत सिंह जी ने यानी स्वर्ण मंदिर के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगवाया, तो साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी स्वर्ण का छत्र लगवाने का काम किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। और सिख समुदाय का स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान है। गुरु गोविंद सिंह जी का संघर्ष, चारों गुरुपुत्रों का बलिदान, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का ही पार्ट है, उसी का यह हिस्सा है। और गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दे दिया बहनों भाइयों, लेकिन भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। ऐसे वीरों की धरती है यह पंजाब। अब कोई दिल्ली से चला आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है, एक आप पार्टी है। अब वो आ गई, वो कह रहे हैं कि साहब हम यहां नशाबंदी समाप्त करेंगे। दिल्ली की गली गली में आपने शराब की दुकान खोल रखी है और पंजाब में आकर आप यहां नशाबंदी समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, बीजेपी गठबंधन की यानी पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल और बीजेपी की मिली जुली सरकार बना दीजिए। हम देखेंगे किसके कलेजे में कितना दम है कि यहां पर ड्रग का कारोबार कर लेता है। देखेंगे हम किसके कलेजे में दम है। और कांग्रेस अब जा रही है, और सुन लीजिए आप भी जा रही है। अब ये लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कह रहे शिरोमणि अकाली दल और भाजपा भीतर भीतर हाथ मिला है। कहीं हाथ नहीं मिला है, ये घबरा गए हैं। कांग्रेस और आप वाले ये सब प्रचार कर रहे हैं। बहनों भाइयों देख लेना, सरकार बनाएंगे तो हम लोग सरकार बनाएंगे, डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं। अब कांग्रेस तो खुद अपने में ही लड़ रही है, अपने में ही लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस के दो बल्लेबाज हैं, इस समय दो बैट्समैन हैं कांग्रेस के, और एक ही पिच पर खड़े हैं। क्रिकेट जानते हैं कि नहीं आप लोग? इसमें नौजवान लोग कितने लोग क्रिकेट जानते हैं? जहां उठाइए, सब जानते हैं। अब कांग्रेस के दो बल्लेबाज हैं और दोनों एक ही पिच पर हैं और दोनों एक साथ बैटिंग करना चाहते हैं। कौन कौन बल्लेबाज है मालूम है? सिद्धू जी। कौन कौन? हाँ जानते हैं, लेकिन कोई नॉन स्ट्राइकर तो रहना ही नहीं चाहता, और एक ही क्रीज पर खड़े होकर दोनों बल्लेबाज लड़ रहे हैं। अब आप समझिए, दो बल्लेबाज एक ही क्रीज पर खड़े होकर लड़ेंगे बहनों भाइयों, तो दोनों का आउट होना तय है कि नहीं? क्या लड़ेंगे बीजेपी? अरे पहले अपने से निपट लो, तब बीजेपी से निपटना। आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसी तरीके से आपने सरकार बना लिया, तब सारे देश में आप सोचते हैं कि आप सरकार बना देंगे। इतनी कुव्वत हो गई। जाकर दिल्ली के लोगों से पूछिए कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। बहनों भाइयों, दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी काम करते हुए देख रहे हैं। कितनी योजनाएं सरकार ने लागू की, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था कि हम क्या करें, भ्रष्टाचार इतना है, ऊपर से हम 100 पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे लोगों की जेब में बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा था। यानी 85 पैसा लोग बीच में खा जाते हैं, यानी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह राजीव गांधी ने कहकर लाचारी व्यक्त की थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के सवाल पर कोई लाचारी नहीं दिखाई।
उन्होंने सिस्टम में और व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाया कि हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो 6,000 रुपया हर साल भेजते हैं, तो 6 का 6,000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी कोई माँ का लाल बीच में खाने नहीं पाता। यह सच है कि नहीं? 6,000 का 6,000 रुपया किसानों खाते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हाथ उठाइए। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, इधर के लोगों से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब्सिडी का पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है। और एक तो ऐसी योजना है, यहां के लोगों को मकान वगैरह मिला है कि नहीं? मिला है ना? कुछ लोगों को मकान वगैरह मिला है इसमें? नहीं मिला है। अब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो कैप्टन साहब को भी नहीं करने दिया होगा, ऊपर के कांग्रेस के लोगों ने। वो बेचारे आदमी तो बहुत भले हैं, कैप्टन साहब बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छे ईमानदार हैं, लेकिन ऊपर वालों ने, उनके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दबाव डाला होगा कि मत लागू करो, नहीं लागू कर पाए। अंत में ऊब कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ ही दिया। बहनों भाइयों, आप यकीन रखना, यदि यहां पर हम लोगों की सरकार आ जाती है, जिन लोगों को अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान नहीं है, उनको पक्का मकान देंगे। आपके घर में नल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यह भी नहीं है, बताइए। जाकर हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में जाकर देखिए, मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, यहां जहां हमारी सरकार, वहां जाकर देखो। पंजाब में एक घर नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल से जल न आने लगे, एक घर भी नहीं बचेगा। सभी घरों में हम नल देंगे और जल देंगे। और हम केवल कहने को नहीं कह रहे हैं, आप जाकर जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जिन भी राज्यों में, आप देख लीजिए कि हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सभी जगह हम दे रहे हैं। और ऐसी कई योजनाएं, आयुष्मान भारत की हमारी एक योजना है, आयुष्मान भारत की योजना। आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में ऐसी योजना है ही नहीं। आयुष्मान भारत का कार्ड किसी को मिला है कि नहीं? आप लोगों को मिला है। कितने लोगों को? एक आप लोगों को मिला है आयुष्मान भारत कार्ड? आप लोगों को भी मिला है। जानते हैं क्या लाभ है उसका? क्या लाभ है? 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। ऐसा नहीं है कि पंजाब में ही इलाज होगा। आप चेन्नई जाएं, दिल्ली जाएं, बंगलोर जाएं, आप जहां भी बीमार पड़ जाएंगे वहां 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। आप इसको यहां पर सरकार तो बनने दीजिए। जिनको नहीं मिला है उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, ताकि अधिकांश गरीब लोगों को, क्या सभी जितने गरीब हैं, उनको आयुष्मान भारत का यह कार्ड मेरे बहनों भाइयों मिल जाए। यह हम लोगों की कोशिश होगी। बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने लागू की हैं। यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात कैसे हैं? लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? ठीक ठाक है? गुंडे बदमाशों की तो नहीं चलती यहां ना? चलती है? गड़बड़ करते हैं? करते हैं? ला दो बीजेपी की सरकार, ला दो आप। और गलत जो कमाई कराई होगी माफियाओं ने, गलत कमाई जिन लोगों ने की होगी और बिल्डिंग बनाई होगी, तो आप बुलडोजर चलवा देंगे हमारी सरकार रहेगी। बीजेपी की सरकार है मेरे बहनों भाई, बीजेपी की सरकार है। ये क्या करेंगे? अब कांग्रेस के लोग सेनापति बन के बैठे हैं चन्नी साहब, लेकिन सैनिक इनका कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है। बिना सैनिक के सेनापति बने, आपस में मारामारी है। गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। कहावत जानते हैं कि नहीं? गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। अब कोई, मैं कांग्रेस में ही देख रहा था, चन्नी साहब ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं। कांग्रेस के लोग उन्होंने सब सारा पोल खोल दिया कि ये गरीब नहीं है, करोड़पति और अरबपति है।
क्या होगा उस कांग्रेस का, क्या करेगी? मेरे बहनों भाइयों, पिछले 7.5 वर्षों में इस देश में जो कुछ भी हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, आपको जानकर खुशी होगी। 2014 के पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यानी दुनिया के लोगों के सामने, यदि कुछ बोलता था तो लोग गंभीरता पूर्वक उसे सुनते नहीं। आज भारत की हैसियत बढ़ गई है। भारत यदि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। यह भारत की ताकत है, यह भारत की हैसियत है। कोरोना के मामले में यहाँ कोरोना है कि नहीं है? नहीं है। अब होगा तब भी मैं देख रहा हूं कि पंजाब के लोग बड़े बहादुर होते हैं, यहां भी कोरोना से भी लड़ गए हैं। माने एकदम मैंने देखा हरविंदर साहब यहाँ तक कोई मास्क नहीं लगाया। ये किसी से भी लड़ सकते हैं पंजाब के लोग। है ना भाइयों? कोरोना, इससे दुनिया का हर देश प्रभावित रहा है। दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री अमेरिका जो मानी जाती है, आज तक कोरोना के संकट से उबर नहीं पाई है, आज भी उस संकट से जूझ रही है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब सारे देश, चीन। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जो कदम उठाए हैं बहनों भाइयों, उसकी प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। पहले वैक्सीन, और लेकिन मैं कहता हूं कि वैक्सीन लगभग सबको लग गया होगा। टीका लग गया है, लग गया जी। अधिकांश लोगों को लग गया। दुनिया के दूसरे देश में नहीं मिलेगा, नहीं लगा है लोगों को, अमेरिका में नहीं लगा है। पहले यह वैक्सीन हमारे यहां भारत में बनता नहीं था, दुनिया के दूसरे देशों से हम लोग वैक्सीन मंगवाते थे। लेकिन अब हम वैक्सीन बनाते भी हैं, अपने लोगों को लगाते भी हैं, और दुनिया के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट भी करते हैं। वैसा भारत बन गया है। और मेरे भाइयों, हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं रहा है, हमारा भारत बहुत ताकतवर भारत बन गया है। और मैं तो सचमुच कहना चाहता हूं, हमारे पंजाब के रहने वाले लोग, हमारे पंजाबी भाई, जनसंख्या से ज्यादा लोग यदि किसी सेवा में है तो आर्मी में है। और मैं जाता हूं कभी बॉर्डर पर तो सुनता हूं, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। मेरे भाइयों, हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है। अब पता नहीं 56 इंच का है कि नहीं है, लेकिन हो जाता है। अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, फूलों की हार पहनने के लिए नहीं आना चाहूंगा। एक बार शीश झुकाकर मोगा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आना चाहूंगा। आप सबको धन्यवाद देने के लिए आना चाहूंगा। और हरजोत कमल जी ने लुधियाना मोगा रेलवे लाइन की सिंगल से डबल लाइन कराने का अनुरोध किया है। इन्होंने कहा है, मैं इनसे कहूंगा विधायक बन जाने के बाद आप मेरे पास आइएगा, सीधे मैं रेल मंत्री को कहूंगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे इसको ले लिया जाना चाहिए। आपने पीजीआई की मांग की है, तो अभी हमको देखना पड़ेगा क्या है। जितना मैं कर सकता हूं उतने में पहले बोलूंगा। ये पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं आप, पीजीआई पेडागॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं, तो इतनी बात पक्की मानिए, हमारी सरकार यहां बन गई। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आप जाकर हमारे उत्तर प्रदेश में देखो, आप अब देखो बिहार वगैरह में, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हमारी सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएगी। ये पहले से संकल्प है। आप न मांगते तब भी मिल जाता है, तब भी मिल जाता। आलू किसानों के हित में प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग। अरे यहां पैसे वाले लोगों हम लगाएं, जो सुविधा देनी है देंगे, लगाइए। हाँ नहीं यार, पंजाब में लगाने को कोई तैयार हो तो जितनी मैक्सिमम सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लगवाइए, यहाँ के लोगों से मिलकर ये लगाएं, लाइक कोऑपरेटिव बेसिस पर लगाइए। और यदि
कोई दूसरे जिले का, दूसरे स्टेट का कोई यहाँ लगाने को तैयार है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री तो आ जाए। जो भी कंसेशंस दिए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो यदि हमारी सरकार रही तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सारे कंसेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चल रहा हूं। जय श्री राम। बोले तो निहार। मोगा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਦਰਨੀय ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਰੋਪਾ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਲੀਨੇ ਤੋਂ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਵਾਲ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਐਮਸੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮੋਠਾਵਾਲ ਸਰਪੰਚ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕੋਟ